Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is a lecture for class 5. Today we will do the reading of unit number 6 and subject SST energy and power resources. Energy and power resources. हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे और पावर रिसोर्सेज जो हैं हमारे ज़राए हैं जो पावर के वो उनके बारे में बात करेंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह हम कहाँ से हासिल करते हैं वगैरह वगैरह ठीक है. सो बुक पेज नंबर 44 to 46 and then 48. This is your lecture number 5 and 6. Okay, so in this lecture there are the key points. Conventional, we will discuss about the conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. The question is that what is conventional resources? Conventional resources are burned to produce through plants. Okay, burns to produce plants, power plants and automobiles. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज वो होते हैं जो बर्न टू प्रोड्यूस होते हैं थ्रू पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स. द एग्जांपल्स आर टाइप्स आर थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी में क्या क्या होता है? कोयल, ऑयल, नेचुरल गैसेस. Okay, after that hydro energy and nuclear energy. These three energies types are included in conventional, and non-conventional energies are those it produced from animal and plants waste. एनिमल और प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं उससे ये प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल. लाइक बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड्स एंड वाटर. So students, let's start book page number 44. Here is the introduction of the unit that the progress of any country depends upon the power and energy sources. Obviously, when the power of energy and resources are highly and found in the area that there the country is, then it is very progressive country. अगर हमारे पास पावर्स और एनर्जीज़ के रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर वो कैसे प्रोग्रेस होगी? वो तो एक बैकवर्ड एरिया ही कहलाएगा. सो दीज टू थिंग्स, पावर एंड एनर्जीज रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल. ये अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज, तो इसका डायरेक्ट पीपल्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं कंट्री में उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे असर होता है. ठीक है. इट हेयर इज़ द एग्जांपल. इफ़ पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग हाईली लिविंग स्टैंडर्ड एंड देयर इंडस्ट्री सेक्टर इज प्रोग्रेसिव, means exports are greater than the import. It means that the definition of progressive country is that exports जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए import की निस्बत. export यानी हमारे मुल्क से ही चीज़ें बन के दूसरे मुल्कों में जाएं, ना कि हम दूसरों से चीज़ें ख़रीदें. अगर ये चीज़ हमारे अंदर है इसका मतलब हमारी प्रोग्रेसिव कंट्री है. लेकिन पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है, अंडर डेवलप कंट्री है. ठीक है. हम यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है. then it is obvious that the country is making full of fun uses usually coal, mined oil, natural gases, electricity and solar energies are included in power resources. These are all included in power resources. So conventional resources of energies are two main types हैं इसकी, conventional sources of energy and non-conventional. Okay, conventional energy sources consist primarily of coal, petroleum and natural gas, and the decomposition of plants and animal result in the formation of these conventional energy. Most of these sources are burned to produce energy through power plant and automobiles, which I have already told you in discussion that they are generally used in the country for the production of heat, electricity and power. Pakistan has the following conventional sources. Pakistan has thermal energy, and the thermal energy we have coal, oil, etc. So let's start. Thermal energy refers of the type of energy in which heat is used to produce. Thermal energy is which type of energy that हीट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. एक हीट हमें मिलती है तो फिर हमें पता चलता है कि एनर्जी है. ठीक है. द एनर्जी इज़ द ओल्डेस्ट टाइप. वुड वॉज ऑलवेज यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग. जैसे वुड लकड़ी होती है वो क्या करते हैं हम उसे जलाने के काम आती है, उसे हम खाना बना सकते हैं. तो उससे जो
प्रोड्यूस होती है हीट, वो होती है थर्मल एनर्जी, ठीक है। आफ्टर द फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस द गिव ऑफ हीट व्हेन दे आर बर्न्ड, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट फ्राहम करते हैं या देते हैं जब वो जल रहे होते हैं। वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ coil, unit liquid fuels like petroleum, diesel, these are all give off heat, were discovered following are the thermal energy resources. Thermal energy resources में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? coil की, पेज नंबर 45. The black gold, coil is called black gold, that is very important line, black gold. Coil को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड चीपेस्ट फ्यूल विच इज़ यूज टू जनरेट पावर एंड एनर्जी इन पाकिस्तान. कार्बन इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल कंटेंट ऑफ कोल विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग. The discovery of carbon in Balochistan, coal in Balochistan during the late 18th century led to its commercial utilization, and the present total coal reserve are estimated around 184.5 billion tonnes, which include the lately discovered deposit of low sulfur coal at Thar. यानी ये उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कोयल की, पाकिस्तान में कहाँ से कब दरियाफ्त हुई? 18th सेंचुरी से शुरू होकर बाद में फिर वो आगे बढ़ती गई और डिस्कवर किया गया लो सल्फर कोयल. In Pakistan, coal is mined in salt range around Quetta and Lower Sindh. Quetta और लोअर सिंध के इर्द गिर्द इनकी काने हैं. द कोयल विच इज़ फाउंड इन पाकिस्तान हैज़ लेस कार्बन. जो पाकिस्तान में कोयल होता है उसमें लेस कार्बन होता है. इट हैज़ लॉट्स ऑफ सल्फर्स विच प्रोड्यूस हैश एंड स्मोक, और इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें से धुआं और हैश राख बहुत निकलती है. जैसे आप टिक्के वगैरह बनाते हो तो वो कितनी मुश्किल से जलते हैं और कितना धुआं होता है. हाँ, Pakistan has huge reserve of coal which can be used to overcome the problem of energy crisis in the country. Now we have oil. Oil, the term refers to the liquid fuel. Oil is called liquid fuel. These are the resources of thermal energies because they produce heat. इस इनसे हीट मिलती है ना, कोयल जब जलता है या ऑयल जब जलता है या इससे वर्क किया जाता है. इनसाइड द अर्थ क्रूड ऑयल मतलब खाम जो तेल निकालता है ज़मीन से, इज़ लेटर प्योरीफाइड बाय मेक पेट्रोल, डीजल, कोरिजीन ऑयल. कोरिजीन ऑयल यानी घर में बनाने के लिए जो तेल होता है या चूल्हे जलाने के लिए जो तेल होता है. पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, मिट्टी के तेल के, उनकी बात की गई है. वैक्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट. इट इज़ यूज टू रन मोबाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड द मशीनरी. यानी एवरीथिंग हम किससे चलाते हैं? ऑयल से, in the form of the petrol and then form of the diesel, etc. It is one of the most important source of energy and throughout the world, and its importance is increasing day by day. Many wars have been fought to get the hold of oil reserves. जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं यानी जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ पे लोगों का आपस में दूसरे मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं इस बात में कि वो जो रिजर्वर है ऑयल वो उनको मिल जाए ताकि वो अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें, नीड्स को पूरा कर सकें. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑयल रिफाइनरी. यानी यहाँ पे ऑयल जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको फिर वो रिफ़ाइन करते हैं, यानी उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको फार्म में लेके आते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोरिजीन, वैक्स. सो देयर आर ऑयल फील्ड एंड Potahar, Pelluch and Lower Sindh. 60% of oil comes from Lower Sindh. ये 60% जो है पाकिस्तान का लोअर सिंध से आता है. ऑयल रिफाइन एंड रिफाइनरीज बिफोर इसके बारे में बताया हुआ है और उसके बारे में आगे एंड पे आप ये भी पढ़ लेंगे कि ये जो ऑयल इज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव. ये जो ऑयल है ये एक्सपेंसिव है और वो जो कोयल है वो चीपेस्ट है. एंड पाकिस्तान हैज़ टू इम्पोर्ट इट फ्राम द कंट्रीज़ इन मिडल ईस्ट. और पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मिडल ईस्ट से ये मंगवाना भी पड़ता है. नाउ वी हैव नेचुरल गैसेस. नेचुरल गैस इज़ आल्सो द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ अल्लाह ऑफ टू आवर कंट्री. ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध. बलोचिस्तान सिंध में वही से नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं, जैसे वो सुई के मुकाम पर है जहाँ से पूरे मुल्क में सप्लाई होती है गैस. नेचुरल गैस इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. ये भी चीप है. ऑयल एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और ये हम लोग इसको इंपोर्ट भी करते हैं यानी दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं. नेचुरल गैस रिसोर्सेज हमारे अच्छे हैं और ये चीप हैं.
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑयल, एंड इट कैन बी प्ले अ ग्रेट रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर, सीमेंट, प्लास्टिक, इसमें भी यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन आर होम्स टू कुक, या हमारे घर में जो खाना पकता है तो उसके लिए भी हमें गैस की ज़रूरत होती है. द गैस इज़ आल्सो प्रोड्यूस एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि जो सिलेंडर्स में होती है. इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है CNG जिसे बोलते हैं, इज़ आल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट. आपको पता है ना आजकल CNG पे गाड़ियाँ चलती हैं. इट इज़ इको फ्रेंडली एंड प्रोड्यूस 90% लेस कार्बन मोनोडाइऑक्साइड. हैंस इट इज़ सेफर टू यूज़ एंड चीपर दैन पेट्रोल. यानी ये पेट्रोल से ज़्यादा सस्ता है नेचुरल गैस.